Literary Societies, Parvaz 2021. I determined to fly, an initiative to enlighten humankind with the talent of differently abled people. माझी को भूल जाऊं, कुछ ऐसा परवाज दे मुझे। माझी को भूल जाऊं, कुछ ऐसा परवाज दे मुझे। मैं सजदे में हूँ ओ मौला, तू बस आवाज दे मुझे। कुछ तो वाह मिल ही जाएगा तुझसे राबता करके। कुछ तो मिल ही जाएगा तुझसे राबता करके। मैं ये जिस्म मुकद्दस कर लूं, ऐसा अंदाज दे मुझे। नमस्कार। एशियन लिटरेरी सोसाइटी एडमिनिस्ट्रेटर मैं अनीता चंद, पोर्टल से जुड़े हमारे व्यूवर्स सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम प्रवास का शुभारंभ होने जा रहा है। हमारे आज के मुख्य अतिथि पद्मश्री श्री श्याम सिंह शशि जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नमस्ते, धन्यवाद। डॉक्टर श्याम सिंह शशि जी का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। डॉक्टर श्याम सिंह शशि जी, an Indian anthropologist, social scientist, academic and writer. He is also several poem anthologies, travelogues, children's book, and anthropological book with over 300 publications in total. The University of Colombo honored him with Doctor of Literature, making him the first recipient Doctor of Literature from the University in Anthropology. The Government of India awarded him with Padam Shri, which is the fourth highest civilian award. सर, आपसे अनुरोध करती हूँ कि प्रवास से जुड़े सभी साथियों का अपने जीवन के अनुभव से कुछ प्रेरणा शब्द दीजिए, वचन दीजिए, कुछ आशीर्वाद दीजिए। सर, आपका धन्यवाद स्वागत है। धन्यवाद अनीता जी। आपकी लिटरेरी सोसाइटी को पहले आपको, मनोज जी को और सारी टीम को मैं प्रातःकाल में आज सबको आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। और आपके पास जो नई जनरेशन आई हुई है उन सबको इसलिए कि मैं स्वयं भी अपने आप को आज बच्चों के बीच पाता हूँ, उनके पेरेंट्स के बीच पाता हूँ, और लगता है जीवन का ये अध्याय शायद मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम देश में जो देख रहे हैं, कोरोना काल छाया हुआ है पूरे विश्व। इस कोरोना काल में should I speak in English or Hindi? Are you understanding? या Yes. कुछ भी जो आपका Audience? मन है, आप Should I? ऑडियंस भी हिंदी भी और जो भी Anyway, आपका मन। yes, I will जी speak in जी both languages. जी जी जी। So, yes. So I will actually why I want to say in Hindi first, because Hindi is our national language, and our Prime Minister Modi ji is also speaking Hindi whenever he goes to UNO, UK, USA, because we should be proud of our language, our culture. We are Indians first, and then this language which we are speaking, it is helpful to us to meet the world, to meet the nowadays universe also. But we should not forget about our ancestors, our old culture, and this is the how I say our. I think the boys, girls who are sitting here are their parents. They should know that there is a lot of conspiracy going on, like today, as we have seen in Delhi and elsewhere, that Kisan program. I don't want to
discuss about that, but you know, everyone understands what is happening in the country. For that, we must know when our constitution was uh, made, passed in 1950. Uh, the, all the parts of of the constitution have the pictures, line drawings of um, of our various cultural great people, cultural subjects, like we have 22 chapters in the constitution. Now the first chapter, I don't know how, how many of you have. Nobody reads constitution. We think, oh, it's a subject for the mm, advocates, those who want to do judicial service. Only they should only study this subject. No, this is wrong. If you don't understand your country, your culture, uh, you have to have some knowledge of constitution. Now, this constitution, which includes the diaspora also, the diaspora people here. You see here, this is the book, my book, long ago when I wrote this book, The World of Knowledge. This is me here, my name is here, Dr. Shyam Tripathi, and here this side, these people known as Roma, the other east side, and this is the Namadi people. Now the world was enormous in the bird line in the beginning, because people were not staying in one place. So they were going from here to there, and then for their livelihood. But that livelihood became now the place of like stay and permanent resident, and as the immigrant Indians, they are living in large number in America, in England, in Canada. Canada, we have got our politicians also. In America also, we have got number two position in politics. So everywhere we have Indians have reasons I can. So now, what I would like to see, at least with my presence here, a world traveler is talking to you. 80 countries I visited, the whole Europe and America, and traveled from Konark to Mexico just to study the sun temples of the world. We have got sun temples in India about 60, 70, like from Konark. Now, what the Konark culture says, what our sun culture says, so it relates to Rama, because Rama was from the dynasty of sun, सूर्यवंशी थे। तो अब आपको अगर मैं ये कहूँ कि सूर्यवंशी थे, कितने साल हुए उनको, तो अनिता जी ये कहना मुश्किल है कि हम कब से अपनी संस्कृति को जिए हैं। और राम संस्कृति को आज माना जाता है। पूरा इंडिया जो है राम में जो है इसलिए हो गया है कि हमारे यहाँ जो मंदिर की कल्पना की, बहुत से लोग काम कर रहे हैं। मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं करता हूँ कि राम और रहीम, ये सारे महात्मा गांधी ने रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम, और ये कहाँ से आए हैं? ईश्वर अल्लाह सत्य तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। तो ये सुबह सुबह ईश्वर का नाम भी मैं ले रहा हूँ और बच्चे को आशीर्वाद भी दे रहा हूँ और उनसे आगे बढ़ने के लिए भी कह रहा हूँ। नथिंग इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, थिंग्स आर डिफिकल्ट ऑफ कोर्स बट नॉट इम्पॉसिबल, यू कैन डू वंडर्स। Mountaineers, one recently, I forgot her name. She was disabled, lady, and she went up to the peak of Mount Everest. जी There are many examples like this. Those who are now Surdas, he was now we got a literary society here, so we have to tell you about how जी this how the poets, those who are blind, like Surdas, like Milton in English, they wrote epics, they wrote a lot of literature, and they were known as the great poets in Hindi literature and English literature. Milton
तो वो पैराडाइज लॉस्ट लिख रहा है कोई, इधर हिंदी में सूर सागर लिख रहा है, और मैं भी मेरे जैसा व्यक्ति इनको शुभकामनाएं दे रहा है। वो क्या, सूर वात्सल्य के श्रृंगार, सूर तुम सौंदर्य के संसार थे, वात्सल्य के अद्भुत, लाइन भूल रहा हूँ लेकिन तीसरी लाइन जो बता रहा हूँ, दृष्टि होकर भी नहीं हम देख पाते, दृष्टि होकर भी नहीं हम देख पाते, सूर तुम तो आंख के अवतार, सूर तुम तो आंख के अवतार थे। नाउ incarnation of why do you say there are 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां? हमारे यहाँ 5 ज्ञानेंद्रिय होती हैं, आँख नाक कान वगैरह वगैरह, ये सब आप जानते हैं। शरीर होता है उसका, और इससे 10 इंद्रियां होती हैं, 11वां मन होता है। हमें ईश्वर ने जो कुछ दिया है उसमें हो सकता है हमारे पास किसी की 1 इंद्रिय नहीं हो, 2 ना हो, किसी के पास टांग ना हो, किसी के पास हाथ ना हो, किसी आँख ना हो, किसी के पास शरीर के दूसरे अंग ना हो, लेकिन एक अंग विशेष भगवान ने सबको दिया है, वो दी है शक्ति, मानसिक शक्ति। उस मानसिक शक्ति के बल पर हम कहीं से कहीं जा सकते हैं, विश्व के बड़े से बड़े काम, असंभव को संभव कर सकते हैं। असंभव कुछ नहीं होता, नथिंग इम्पॉसिबल, थिंग्स आर डिफिकल्ट ऑफ कोर्स, बट you can make possible to those things which are impossible for others by your deeds, by your hard work. Hard work is everything which you can get from your efforts. अभ्यास इसे कहना चाहिए। तो इसलिए मैं आज आपको सुबह सुबह जो बात बताई है उस राम संस्कृति के बारे में, वो जानना अच्छा है। आपने जी बहुत बहुत अच्छा आपने कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। सर मैं आपसे एक सवाल और एक पूछना चाहती हूँ कि आज जैसे हम प्रवास, हमारा जो कार्यक्रम है डिफरेंटली एबल्ड पीपल के लिए ये हमने रखा है, और इसमें बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हैं। अच्छा। तो आप जी, आपने भी एक रिसर्च फाउंडेशन में जो दिल्ली रोहिणी में है, उसके फाउंडर हैं आप, जैसा मुझे पता है। तो कुछ आपने जो आपके जो अनुभव हैं हमारे साथ वो भी साझा करते चलिए। जी जी। अच्छा, इससे पहले मैं जो अपनी बात पूरी कर लूँ, रिसर्च फाउंडेशन का एक बहुत बड़ा संस्थान है जिसके जो वर्ल्ड से जुड़ गया है, बहुत सी संस्था। मैंने अभी दिखाया ना, ये लोग रोमा होते हैं उनसे, और देखा ना सबसे ऊपर, रोमा राम के वंशज हैं। रोमा मीन्स राम के अनुयायी, नाम के जुड़े हुए राम के वंशज थे। और हम इसलिए राम की बात कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि वो जिसके सब बलराम होते ना, हमारे यहाँ गांधी जी का महापुरुष हुए हैं, सब ने कहा है कभी कि जो जिसका कोई नहीं होता उनके राम होते हैं। इसलिए राम की संस्कृति, कृष्ण की संस्कृति, ये हमारे संविधान में थी। इनके चित्र बने हुए थे कभी, और वो चित्र ये है कि हिंदी की पुस्तक मेरी अभी आ रही है, क्योंकि मेरी पता आपने बताया अभी 500 पुस्तकें के बाद भी मैं चैन से नहीं बैठता हूँ। सीनियर सिटीजन जितनी उम्र वो काफ़ी हो गई है, जो 80 के आसपास है या 80 से भी क्रॉस कर गया है, तो ऐसे आदमी जो इस वक्त भी राम के लिए इन चित्रों को दे रहा है। और ये जो है, ये अगर देखेंगे बच्चे शायद, या आपके श्रोता या बिल्कुल देखेंगे जी, अगर ये देख रहे होंगे, ये पहले मैं दूसरी बात मैं बताऊंगा आपको, ये भी हमारी संस्था काम करती है, जिसके लिए मैं, मेरा परिवार सब लगा रहता है उसमें। आप लोग भी आएंगे कभी। हाँ, वहाँ पर विश्व के बहुत लोग आ चुके हैं, और मेरा ख्याल से अनेक नेशनलिटी के लोग आए हुए हैं जो रिसर्च फाउंडेशन में प्रेरणा ग्रहण करते हैं। 4000 बच्चे पढ़ते हैं, और इसके अलावा उसमें बहुत सारे विषय हैं, सोशल साइंसेज हैं, लिटरेचर है,
हिंदी लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर है, एंड इवन वी इनवाइट मेनी स्कॉलर्स फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम इंडिया, तो वो सब आते रहते। लेकिन मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये चीज, दिस इज द पायनियर वर्क डन बाय मी इवन टुडे इन कोरोना पीरियड। हाउ पीपल से नो नो इट्स नॉट पॉसिबल, नहीं ये हो गया वो हो गया, तो चले गए हॉस्पिटल, चले गए फलाना हो गया। मैं भी 3 बार हॉस्पिटल गया हूँ और मैं मृत्यु के मुख से लौटा हूँ। मेरा तो हवाई जहाज भी अपहरण हो गया था एक बार। बहुत सारी लंबी कथाएं हैं तो अभी मैंने उनको लिखा अभी, ए स्टोरी, ए सक्सेस स्टोरी ऑफ ए विलेज बॉय। आई कम फ्रॉम ए विलेज and how I used to go on food from 6 miles a day from my home village to Haridwar, which I belong to. You know, you also belong to that area, perhaps. उत्तराखंड, हम लोग उत्तराखंड वासी जो हैं देवभूमि से आए हैं, तो देवभूमि से जो लोग आते हैं तो उनको पता है सारा। हमारे जो समय शिक्षा मंत्री हैं, सब बच्चे जानते हैं उनको, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, और उनके गुरु हैं डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण, सब हम लोग हरिद्वार वासी हैं या उधर उत्तराखंड वासी हैं। तो उनसे मेरे साहित्य पर बहुत सारी डॉक्टरेट कराई हैं डॉक्टर अरुण ने। तो और भी लोग हैं जो हमारे विलेज से निकले थे, छोटे छोटे शहरों से निकले, छोटे गांव से आए, लेकिन हमने वो काम करके किए। 80 देशों की यात्राएं, हाउ इट इज पॉसिबल, और अपने बलबूते पर मैंने यात्राएं की। तो इसलिए मैं सब जितने भी आपके व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहता हूँ कि अगर ठान लिया जाए कि मुझे ये काम करना है, अब ठीक है, सुमन बेचारा हो असफल हो गया किसी उसने इसरो वाले में जो वहाँ जाना था, तो चांद को कर रहे थे, नहीं हुआ, कोई बात नहीं। मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री, हेड्स ऑफ वंडरफुल जॉब। आई कांट, यू नो, मैंने तो मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मैंने पहले इंदिरा गांधी से मैंने काम शुरू किया था, उनके साथ भी मेरा, उनके साथ में मेरे यहाँ चित्र बहुत सारे हैं इंदिरा जी के साथ में, ये सारे। इसके बाद में मैं यहाँ बता नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये देखें, हाँ ये मोदी जी के साथ मिलेगा, ये मोदी जी के साथ मिलेंगे, लेकिन इंदिरा जी के साथ ही मिलेंगे। पद्मश्री जब मुझे मिली थी, ये वेंकट रमन दिखाया जी के साथ, बीच में शंकर दयाल शर्मा है, ये सब, ये पुस्तक इसी में है, ये आ रही है, और इसमें ये लोग हैं जो विश्व के लोग हैं, सारे विश्व के लोग हैं इसके अंदर। आप लोग भी हैं शायद कहीं नहीं, तो सोसाइटी भी होगी कहीं ना, कहीं ना कहीं है सोसाइटी। तो आप लोगों ने मुझे बुलाते रहे, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इतने वर्ल्ड, ये सब विश्व के लोग हैं। तो ये, लेकिन ये चित्र जो मैं बता रहा था, ये रेखा चित्र देख रहे हैं ना आप लोग, दिखाई पड़ रहे हैं सबको, देखिए ये ऊपर राम है, नीचे राम है, बीच में सीता है, और पीछे लक्ष्मण बैठे हैं, और ये पुष्पक विमान है। पुष्पक विमान रावण का नहीं था, वो रावण के कजन का था, उसका नाम कुबेर था। कुबेर जो धन का प्रति होता है, तो उसने, लेकिन वो कुबेर जो है वो देवता भी था, और वो, मैं बीच बीच में कहानी सुनाने लगता हूँ उनको, इसलिए कि ये कथाएं हैं आध्यात्मिक, ये वैसी कथाएं नहीं है। रामायण जो है हमारे यहाँ, रामायण भी 100 से अधिक रामायण है, बहुत मैंने भी काम किया है। तो वो राम जो है, इसमें ये भेजा मैंने उनको, सारा मोदी जी को भेज दिया है इसको। ये बीच में देखिए, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये समय इतना नहीं है, बहुत सी बातें मेरे पास तो जाना है, अगर मैं बोलता जाऊंगा तो घंटों लगेगी, आपने मुझे ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे। तो ये नीचे जो, हाँ, ये बीच में जो है ना, ये श्रीलंका से अयोध्या जा रहे हैं ये, और ये चित्र जो बनाए हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सुना होगा आपके यूएस में, बहुत बड़े वो पोएट, वर्ल्ड पोएट थे, जिनको नोबेल प्राइज मिला था हिंदी में। इंडिया में केवल एक ही पोएट, एक ही लैंग्वेज, हिंदी वालों को नहीं मिला, अंग्रेजी वालों को नहीं मिला, केवल रविन्द्रनाथ टैगोर को बांग्ला में मिला। अंग्रेजी में तो अनुवाद किया था, वो जॉर्जिस ने किया था, लेकिन उनको जो वो मिला था वर्ल्ड का वो सबसे बड़ा। तो उनके वरिष्ठ वो थे, चित्रकार थे, वरिष्ठ चित्रकार जो हैं, आर्टिस्ट, उन्होंने ये बनाए। ये मेरे बनाए हुए नहीं है, ये उनके बनाए हैं। ये तो मैंने इस मैगजीन में छापे हैं, सभ्यता की। सभ्यता मेरे घर में भी, मेरी एक ग्रैंड डॉटर का नाम सभ्यता है, दूसरे का नाम ये मेरे, उसको उन्होंने, उन्हीं के नाम से मैगजीन है, 22 साल हो गए थे चलते हुए,
और रिसर्च फाउंडेशन की मैगजीन है। इसमें मैंने आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि ये हम लोग जो भारतीय संस्कृति के लिए कितने समर्पित हैं, किस तरह से हम अपने देश को, समाज को और विश्व को जोड़ करके चल रहे हैं। और मेरे अपने स्टूडेंट भी जो हैं वो दिव्यांग हैं, कई दिव्यांग रहे हैं। उनको बारे में बताऊंगा तो मैं आपको थोड़ा सा, पेरेंट्स अगर बैठे हुए होंगे तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि साइकोलॉजी भी पढ़नी चाहिए, चाइल्ड साइकोलॉजी, हर लोग की चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़िए। और भी मैंने उनके लोग, उनके जो दिल्ली में उनके सीनियर ऑफिसर डायरेक्टर वगैरह भी हैं, उनको वो सबके नाम लेने की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि आपको लोग जानते नहीं हैं। तो वो जो है यहाँ पे, पहले तो मैं उधर पसंद कर देता हूँ, मैं ये नीचे नहीं जो मैं ये है, ये साइड में देखिए, ये साइड में यहाँ पे ये नीचे कृष्ण है, कृष्ण है गीता का उपदेश देते हुए महाभारत में, और अर्जुन को ये भी इन्हीं के चित्र बनाए हुए हैं। किसके बनाए हुए हैं? ये संविधान में थे, एक चौथा भाग जो था हमारा संविधान का, उसमें ये चित्र बन हुए। हर एक से जो, क्योंकि आपकी लिटरेरी सोसाइटी है तो इसलिए वो लिटरेचर को भी जानना चाहिए, जो हमारे यहाँ पर हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं। तो वो जो है ना, उस समय ऊपर जो वो होता है, जैसे ये पुस्तक यहाँ पे बनी है, ये पुस्तक ये पुस्तक है। तो ये ऊपर का हिस्सा जो होता है यहाँ, इसमें अंदर जो मेरी किताब है, तो बहुत बड़ी किताब है, 400-500 किताबें दिखा दी हैं आपको। ये रोमा का दिखा दिया, ये विदेश के भी दिखा दिए। तो ये सब यहाँ से लेकर के ये 1.5 इंच का जो है, 2 इंच का, उसमें ये चित्र बने हुए हैं। और अब ये एनपीटी ने किताब छापी है, जिसमें बता रहा हूँ मैं आपको। मेरे मित्र हैं जो मुझे घर आके दी थी किताब, ये उनकी अब ये किताब है। ये यहाँ पे देखिए, ये किताब है, एनबीटी ने छापी है। ये बालाजी की पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है, क्योंकि उनका वो मराठी राइटर थी, तो मराठी उनकी जो भाषा में होता है ना, जहाँ जहाँ जिस भाषा का व्यक्ति होता है, तो हिंदी की भाषा नहीं है वो, उसके बावजूद उन्होंने ये, अब देखिए ये चित्र हैं, ये चित्र हैं, प्रार्थना करते हुए हैं, ये बुद्ध हैं, ये भगवान बुद्ध हैं, और ये महावीर हैं। इसके अंदर महावीर मिलेंगे, तो सारी चीज, ये गुरुकुल है, ये आश्रम है। मतलब ये चित्र कहाँ चलेगी? ये उनके लेखक हैं, ये सारा रिसर्च किया। ये मेरी पुस्तक में इससे भी ज्यादा आएगा, क्योंकि मैं तो हिंदी का लेखक हूँ ना, मुझे पोइट्री, तो मैं इसलिए कह रहा था कि मेरे यहाँ जो स्टूडेंट हैं वो डिसेबल्ड, बता रहा हूँ मैं आपको, वो लेके चलते हैं। जैसे बैसाखी का सहारा लेके चलने वाला गीत है, और वो अच्छे मार्क्स लाता है और पास हो जाता है एमए क्लास में। मेरे यहाँ एमए रूरल डेवलपमेंट की है, मैंने बताया ना, बहुत सारे विषय में, सोशोलॉजी है, सोशल साइंस। तो अभी और ये जो हमारे जो यंग जनरेशन, उनको उनके साथ में सिंपैथी नहीं वर्ड, ये अच्छा नहीं है। हमको उनके साथ प्रेम, स्नेह, इसलिए हमको देना चाहिए। और उनके अगर उन्हें क्रोध भी आता है, क्योंकि उनकी 1-2 इंद्री नहीं है, तो इसलिए हमको चाहिए कि उनके प्रति हम सद्भाव रखें। और स्पेशल, जिसे कहते हैं ना, स्पेशल चाइल्ड हमारे घर में होता है, तो उस स्पेशल चाइल्ड की तरह उसको माने कि ये हमारा रियली दिव्य बालक है, ईश्वर के यहाँ से आया है, इसकी सेवा करना हमारा परम धर्म है। इसको किस तरह से हम उसे त्याग करें, और कैसे, अभी मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये क्योंकि मैं तो बहुत किस्म की किताबें लिखता हूँ, साहित्य की तो है ही है सारा, बेसिकली आई एम ए पोएट, आप भी पोएट हैं, सब ये मैं आपको कुछ अपनी बातें बताना चाहता हूँ, पोइट्री की, बल्कि सबको, बच्चों को और अपने माता पिता को। प्यार के ऊपर मैंने जो लिखा है, प्यार देना बहुत, हमने अपने दर से पूछा, हमने, ये मेरी अपनी पंक्तियाँ हैं, जी जी जी, आपने सुना भी होगा। मैंने या हमने
अपने दर से पूछा हमारा घर कहाँ है। हम लोग सब आए हैं, पता नहीं किस दुनिया से आए हैं, किसको कुछ पता नहीं है कि आज यहाँ है कल कहाँ जाना है। हमारे जो लोग जो नहीं देख पाते हैं, जैसे मैंने कहा सूरदास की तरह से, तो वो संगीतज्ञ बन जाते हैं, कवि बन जाते हैं, लेखक बन जाते हैं, और भी बहुत से काम करते हैं बिना उनके पास एक, इसके पास कहते हैं ना सिक्स्थ सेंस होती है, तो वो सेंस उनको मिली हुई है, ईश्वर ने दी है। हर एक को कोई ना कोई गुण दिया हुआ है, बस उस पर उसको आत्मसात करने की आवश्यकता है। आप बैठे बैठे योगा कर सकते हैं, कुछ और ऐसी चीजें कर सकते हैं जिसमें 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 किसी ने किया ही ना हो। तो ऐसा ऐसा नॉलेज फील्ड, पाइनियर वर्क, जैसे मैंने पाइनियर वर्क में सारे दिखाए, कहाँ पर मैंने अभी आपको इतनी सी चीजें बता दी, अभी तो बहुत सारी हैं जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी हैं। ये इधर ये छोटे छोटे चित्र हैं, तो बड़े बड़े हैं, ये कलर्ड हैं, ये यहाँ पे बुद्ध हैं, महावीर हैं, ये गुरुकुल है, ये कुबेर है, इसका वो विमान जो है और रावण ने छीन लिया था उसे, फिर बाद में रावण को दे दिया उसने, चल तू ही रख ले भाई अपने पास। उस विमान से राम जो है वो अयोध्या पहुंचे थे। वर्ल्ड हमें जा रहा है राम मंदिर में। राम मंदिर एक नहीं है, बहुत सारे हैं, मैं कोई किसी धर्म की बात नहीं कह रहा हूँ। सबसे बड़ा सूर्य मंदिर इसे कहते हैं, क्योंकि सूर्य वंश भी है हमारे यहाँ, तो सूर्य वंश का राम मंदिर वो मैक्सिको में है। तो मैंने कर्नाटक, इंडिया में तो कोणार्क के जिसे सूर्य मंदिर कहते हैं, लेकिन उस मंदिर को जो हमारे गए होंगे कभी मय लोग आए, मैं तो उनके बीच रह करके बहुत काम किया। मेरी बुक्स अंग्रेजी में है, वो रोमा द जिप्सी वर्ल्ड उसका नाम है, रोमा द जिप्सी वर्ल्ड, WORLD, जैसे वर्ल्ड ऑफ नॉमेज। मैंने बताया था ना मैंने कि जीवन में सारा जो है हम लोग घूमते हैं, घुमक्कड़ बहुत हैं, मतलब शुरू से राम बहुत से लोगों के नाम हैं जिन्होंने काम किया है। तो हमारे मैं इस समय काम कर रहा हूँ, हमारे एक संस्था है RSP है, रिसर्च फाउंडेशन तो है, ये बहुत पुरानी संस्था है जो इन लोगों पे काम कर रही है, जो यायावर हैं, घुमक्कड़। यायावर संस्कृति है, यायावर कल्चर है, एक संस्कृति का नाम है। जैसे राम भी एक संस्कृति, राम भी यस्मिन रमन्ते सयोगिनो, जिसमें राम भी 14 साल तो वनवास में रहे थे, तो राम तुमसे बड़ा यायावर कौन होगा, ये मेरी कविता है जीवन में। इसलिए जब वो सारे असंभव काम करके दिखाए हैं, बालपन से ही चले गए, विश्वामित्र ले गए थे पहले उनको, फिर वशिष्ठ के कुलगुरु थे, तो इस तरह से उन लोगों ने ये सब इतनी बड़ी बड़ी काम किए हैं। और ये फिर यहाँ पे हमारी ये संस्कृति है, ये राम संस्कृति जो है फिर राष्ट्रीय संस्कृति बन गई। इसी संस्कृति को जब ये बताया मैंने, अलग अलग धर्म के लोग हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अब देखिए यहाँ मैं चित्र में दिखा रहा हूँ, प्रातःकाल ये चित्र नहीं मिलेंगे आपको, ये कहीं पढ़ने को भी नहीं मिलेंगे, ये संविधान की किसी भी किताब में, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, आप चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछिए, शायद ही किसी ने ये चित्र देखे नहीं। 1950 के बाद में क्योंकि पार्लियामेंट हाउस में ये सब अप्रूव हुए थे सारे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल थे, लेकिन संविधान निर्माता कौन थे? हम डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं, सब लोग उन्हीं का नाम लेते हैं। इसके अंदर चित्र भी हैं, हमारे प्रधानमंत्री को संविधान को प्रणाम करते हैं, बड़ा भारी इनका। तो मैं किसी उसकी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इन लोगों ने कितना काम किया है। फिर ये शिवाजी हैं, शिवाजी कहाँ से आ गए? ये सब छपे हुए हैं इस ऐसी पुस्तक के ऊपर, ये इतनी बड़ी पुस्तक है वो किताब, एक ही कॉपी रखी यहाँ पे पार्लियामेंट में, वो हर एक को नहीं दिखाते हुए, क्योंकि उसमें गैस भर गई है, तो किसी को पता ही नहीं कि भाई ये चित्र कहाँ थे। अब तो नहीं छपते, कहीं नहीं छपते। तो ये चौक साहब छपा हुआ, ये भी अशोक चक्र, ये सब जो है ना त्रिमूर्ति, ये वो वहीं से ये आए हैं। और ये यहाँ पे गांधी जी का जो रेयर ये है, ये है, ये भी, ये सब उन्हीं के उस समय के बनाए हुए चित्र। और इसमें आपको लक्ष्मीबाई भी मिलेगी, आपको लक्ष्मीबाई है और नंदी है। ये मैं सब छोड़ रहा हूँ यहाँ क्योंकि सब समय बढ़ जाएगा। एनीवे, तो मैं अभी आपकी
मैं उससे आता हूँ, मैंने हाँ वो सुना रहा था आपको। हमने अपने दर से पूछा। हाँ वो हमने अपने दर से पूछा हमारा घर कहाँ। दर ने कहा सारा जहाँ जहाँ। दर ने कहा सारा जहाँ जहाँ है। हमने सवाल किया बंधु सारा जहाँ कहाँ है। दर का जवाब था दार जहाँ जहाँ। प्यार। बहुत खूब। तो ये प्यार बना रहे, परिवारों में बना रहे। हमारे मैं देख रहा हूँ कि यही अभाव खटकता है कि प्यार नहीं है हमारे परिवारों में, हमारे देश में, हमारे विश्व में। कहाँ से कोरोना कितनी बड़ी महामारी आई। स्पेनिश फ्लू कभी 100 साल पहले था, चला गया। प्लेग आई, चली गई। इतनी बीमारियां आई, सब चली गई। ये भी जा रहा है, अब बहुत कम रह गया है। भारत में तो बड़ा लकी है क्योंकि भारत में आयुर्वेद आयुर्वेद हमारे यहाँ 4 वेद माने जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। फिर उनके उपवेद होते हैं जिसमें कि ऋग्वेद का उपवेद होता है आयुर्वेद, मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस कभी इतनी बड़ी थी कि हमारे यहाँ वो जो थे ना, कहानियाँ कहते हैं लोग बात, जो ये अरे ये तो वो हैं, उसको कहना चाहिए तो मनगढ़ंत हैं, क्यों मनगढ़ंत हैं, लेकिन मानते हैं लोग बाग जो वेद उपनिषद को मानते हैं। पश्चिम मानता है सारा, और ऋग्वेद को तो कहते हैं द ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर ऑफ द वर्ल्ड। ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर ऑफ द वर्ल्ड जो है, जब आप ये कहते हैं इसको, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर क्या है, पोइट्री है। आप भी पोइट से, वेदों में पोइट्री है और वेदों के मंत्र होते हैं, गीता के श्लोक होते हैं। लोगों को यही पता नहीं कि मंत्र श्लोक में क्या अंतर है। तो इसलिए आपके व्यूअर्स को मैं आज ये वीडियो बता रहा हूँ कि ये वो जाने कि किस प्रकार से हमारे ऋषि मुनियों ने, जिन्होंने आश्रम कभी बने थे, क्योंकि विश्व गुरु बनने जा रहा है। भारत तो पहले भी विश्व गुरु था, आज भी है, कल भी रहेगा। लेकिन हमारा अपना पतन कैसे हुआ, हमारे अपने कारणों से हुआ। हमारे यहाँ जाति प्रथा भयंकर, हमारे यहाँ दहेज प्रथा समाज में, बुराइयाँ कितनी हैं। सती प्रथा थी जिसे राजा राम मोहन राय ने दूर किया, और बहुत से लोग हैं, सबको जिन्होंने इतिहास पढ़ा। तो इन बच्चों को, बड़ों को भी, सबको मैं एक, आज मेरा आने का अर्थ ये भी है कि हम सबसे पहले तो ये मान के चलें कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, और बी पॉजिटिव, लिव पॉजिटिव। ये 3 मंत्र हैं। ये भी मंत्र एक प्रकार के आज की भाषा में हमें सकारात्मक होना चाहिए, कभी निराश नहीं होना। अगर आंखें नहीं है भगवान ने दी तो कोई बात नहीं, अंदर की आंखें हमारी भीतर दी हुई हैं, हमारे ज्ञान दिया हुआ है, उसको निकालिएगा। तो मेरे जैसे स्टूडेंट्स हैं, 3-4 स्टूडेंट आया करते थे, तो मेरे जो अपने स्टाफ हैं, अपने यहाँ के प्रोफेसर हैं, उन लोगों ने उनको हिंदी सिखाई, हिंदी में साहित्य का ज्ञान दिया। उन लोग बच्चों ने PhD किया, डॉक्टरेट किया। कई ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं, और बिल्कुल आंखों से उनको देखो। आजकल के आपने राइटर तो सर, मैं बीच में आपने तो, मैंने आपके आर्टिकल जो ब्रेल लिपि पर आपने कई आर्टिकल भी लिखे हैं, जी जी और जी इस पर भी आपका काफ़ी रिसर्च रही है। बात मतलब आपके अनुभव रहे हैं, बच्चों के साथ आपका रहा है संपर्क। तो कैसे आपका मतलब किस तरह से आपने इस पे वर्क किया है? अनिता जी, ऐसा है, मेरी तो मुझे अच्छा लग रहा है बच्चों की भी जाकर के, और भी अच्छा लगता है। स्कूल वाले बहुत बुलाते रहते हैं मुझे, और मैं जाकर के उनको आशीर्वाद देने के लिए जब जाता हूँ, लगता है कि मैं अपने आप को आशीर्वाद दे रहा हूँ। जैसे मैं अपने आप को ये मेरा बचपन याद आ रहा है मुझे, इसलिए मैंने 25 पुस्तकें लिखी। 25 पुस्तकें, मेरी भी साहित्य में डॉक्टरेट की है, इसमें बाल साहित्य में तो 70-75 PhD हैं कि छपी हैं बहुत सारी। तो वो तो सब विषय नहीं था कि यहाँ के बच्चों को पता नहीं था, तो दिखाई पड़ेगा नहीं। ये भी दिखाया मैंने, पता नहीं कितने ने देखा होगा, नहीं देखा होगा, पर सुना तो सभी नहीं होगा। और एक नई बात सुनी होगी कि हमारे संविधान के वो चित्र कहाँ चले गए, कॉन्स्पिरेसी है।
कल्चर के साथ कॉन्स्पिरेसी है, हमारे जीवन के साथ षड्यंत्र होते हैं, आज भी षड्यंत्र हो रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन इस समय हमारे यहाँ दिल्ली जिस तरह से यहाँ एनआरकी देखी गई 26 जनवरी को, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। हम लोग बहुत दुखी हैं, और भी दुखी हैं, तो राष्ट्र प्रेमी और कवि तो बहुत दुखी होता है अंदर से, क्योंकि उसने जो सुब्रमण्य भारती को सुना, उसने राष्ट्रीय कविताएं हम लोगों ने लिखी। जो मैथसन गुप्त को, जिसको न अपनी जाति तथा नहीं देश का अभिमान है, वर्णन नहीं पशु है मेरा और मृतक समान, और हमारा हिंदुस्तान हमारा क्या क्या गीत गाना है, बाहर ये चला गया था यहाँ से, लेकिन बहुत से लोग मरे हैं। तो गालिब है, उसके बाद में जो हमारे पंडित सोमनाथ द्विवेदी हैं, राष्ट्र कवि हैं लोग, मिश्र वगैरह से। तो मैं ये आपने पूछा था मुझसे, मैंने क्या पूछा था अभी आपने, कुछ प्रश्न किया जो ब्रेल लिपि में आपने ब्लाइंड के लिए जो आर्टिकल्स लिखे हैं, कैसे काम किया है, कैसे संपर्क आपका रहा, ये था मेरा सवाल। 40 साल 30-40 साल जब जिन बच्चों का जन्मदिन हुआ, वो जो नई पीढ़ी की आप बहुत यहाँ जन्म हुई, उस समय मैंने सारा जनजाति में काम किया था, पर्वतीय जाति में काम किया। मैंने भारत की कोई ऐसी बड़ी जाति जनजाति नहीं देखी, छोटी होगी, सिर्फ कश्मीर से अंडमान निकोबार में सिर्फ 25 लोग रह गए थे, जो कि लिटिल अंडमानीज कहलाते हैं, लिटिल अंडमानीज। और फिर जारवा वहाँ के लोग हैं। जारवा तो एक मान से ना विष होते थे, वो मार देते थे। अब तो वो सभ्यता का हमने ठेका नहीं ले रखा है। वो लोग अपनी सभ्यता, उनकी अपनी कल्चर है, आपकी अपनी कल्चर की बहुत रूप है। इंडियन कल्चर है, फॉरेन कल्चर हैं, ग्रामीण कल्चर है, नागरिक कल्चर है। लेकिन वो ये जो बच्चे लोग उसके पर्वत के हैं या ट्राइबल बच्चे हैं, वो मैंने उन किताबों को लिखना शुरू किया। हालांकि मेरे अंग्रेजी में 300 किताबें मोटे मोटे ग्रंथ अंग्रेजी में, 30 कमरा भरा हुआ है यहाँ पे। अगर देखें मेरे पीछे जो है, ये पूरा कमरा जो है, ये ड्राइंग रूम है मेरा, बहुत बड़ा है। यहाँ बड़ी बड़ी देश विदेश की बड़ी ब्रिटिशों की रही यहाँ पे, एक प्रकार से विद्या मंदिर है। मेरी, हाँ, विद्या मंदिर की बात की, मेरी एक स्टूडेंट अभी हाल ही में, अब देखिए कितना काम करती हैं, 7 बच्चे, लड़की, उसका नाम नेहा शर्मा। शी इज टॉपर इन द यूनिवर्सिटी इन MARD, रूरल डेवलपमेंट। क्योंकि रूरल डेवलपमेंट से मैं विलेज का हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है गांव की कल्चर को पढ़ाना है वहाँ पे। तो ये ट्रिपल मेरे PhD में, लेकिन मैं इस ज्ञानकांत नहीं होता ना कोई, मैं तो आज भी पढ़ रहा हूँ, आज भी इसलिए बच्चों कहता हूँ पढ़ते लिखते जैसे है कि उम्मीदों में बंधा एक जिद्दी परिंदा है इंसान, उम्मीदों में बंधा एक जिद्दी परिंदा है इंसान, घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर है। क्या बात है। आशा पर, बिल्कुल, आशा बहुत बड़ी बात कही है जी, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर है। डॉक्टर श्याम सिंह शशि जी हमारे साथ हैं। वो साहित्यकार, समाज विज्ञानी हैं। आपको 2012 में नवगठित अंतर्राष्ट्रीय रोमा संस्कृति विश्वविद्यालय का अध्यक्ष व कुलपति मनोनीत किया गया था। डॉक्टर शशि जी के साहित्य पर विभिन्न विश्वविद्यालयों में से अनेक MPhil, PhD आदि के लिए शोध कार्य हुए हैं। डॉक्टर शशि जी के महाकाव्य अग्नि सागर पर 1993 में दूरदर्शन पर 10 एपिसोड का सीरियल भी प्रसारित हो चुका है। सर, आपसे एक मेरा सवाल है कि आपका जो साहित्यिक यात्रा रही है, लाल सवेरा से शुरू हुई, जहाँ तक मैंने आपको पढ़ा और समझा है कि आपका साहित्य बहुत ही अर्ली एज में आपने
अपना साहित्यिक यात्रा शुरू की लाल सवेरा से, और जो अग्नि सागर से होकर के, सागर माथा से होते हुए विदेश जाकर रोमाओ जनजाति पर अपने आप जो आपने कार्य किया है, जो कि आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में रहे हैं। तो जैसा कि एक सर्विस में रहकर असंभव को संभव आपने कैसे बनाया, क्योंकि आप डायरेक्टर जनरल मीडिया हेड थे, साहित्य का आपका क्या मतलब योगदान है, आपके क्या अनुभव हैं। हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि कुछ उनको आपके बारे में जो आपने असंभव से संभव किया है वो आप बताएं जरूर। जरूर, धन्यवाद। बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने, इसमें सब आपने पढ़ा दिए मुझको, और मुझे जितना आप जानती हैं आपने बहुत कुछ बताया। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ये प्रश्न, हाँ, जब मुझे पद्मा अवार्ड मिला, पद्मश्री, बहुत यंग एज में मिल गया था। माय बात यंग एज इसलिए होती है क्योंकि साहित्य में अंग्रेजी और हिंदी 2 भाषाओं में आई एम द फर्स्ट पद्मश्री अवार्डी इन द कंट्री एंड द लास्ट परहैप्स, आई डोंट नो वेदर सम अदर पर्सन, लिटरेचर, नॉट अदर सब्जेक्ट, देयर आर मेनी सब्जेक्ट। पद्मा अवार्ड तो आज उनका पतन भी हुआ है बहुत सारा, लेकिन 90 में जब मुझे मिला था ये, तो मैं आवाज 51 या 52, तो ये एज बहुत कम होती है, क्योंकि उसमें 95 के तक के एज के लोग थे मेरे साथ में, और सब्जेक्ट थे। तो अंग्रेजी हिंदी में जब मिला तो मुझे लगा, तो जब मुझे मेरे विभाग के लोगों ने, तो डायरेक्टर जनरल तो बाद में हुआ था, डायरेक्टर डीजी बाद में हुआ, और बहुत सारा, लेकिन मैं अपने आप को ये मानता रहा कि ये पद जो हैं ये सेवा के लिए, और ये सेवा हमें, जैसे हमारे जी कहते हैं, इनका संबंध जब तक ये नहीं होना चाहिए, जब तक हम सीट पे बैठे हैं, हमें देश, समाज, मानवता के लिए जितना अधिक से अधिक ईश्वर ने हमको ये पद दिया है, तो इसका हम सदुपयोग करें, उसे अच्छे जगह लगाएं, और उसके साथ साथ जैसे हमारे बहुत से लोगों ने कहा है, मैं किसी की विशेष का नाम नहीं दूँगा, लेकिन ऐसे लोग हैं मेरी तरह शायद वो काम कर रहे हैं रात हुई। अभी मैं, जब आपने मुझे बुलाया, मैं 5 मिनट में तैयार होके आ गया। अब सोचिएगा इस उम्र में व्यक्ति 5 मिनट में तैयार होके आ जाए आपके सामने, और मुझे लगा, और ये गनीमत है कि देखिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया, कोरोना को हमने ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कर दिया। वो समय का सदुपयोग, मैंने अपना एग्जाम्पल दिया आपको, 5 मिनट में तैयार होता है, आपके सामने बैठ मुझे आप कहीं ले जाइए, आई एम रेडी। तो इस तरह की, मेरे मंत्री ने पूछा था, अनिता जी, मेरे मंत्री ने पूछा, पांडे थे बंगाली यहाँ पे, इसमें तो हमारे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री में, जहाँ पर मैं बेसिक था, IAS रैंक था मेरा, और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की। एनीवे, तो उस वक्त भी मैं लिखता था। लोग कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं है, तो जो मेरा वो सम्मान कर रहे थे मेरे मंत्रालय के लोग, पहले तो राष्ट्रपति ने नेशनल स्तर पर हुआ, बहुत वक्त तो चित्र भी छपते थे, अब तो चित्र भी नहीं छपते, पद्मा अवार्ड चले, बहुत से प्रतीक्षा करते कहते चले जाते हैं इस दुनिया से। लेकिन और साहित्य में खासतौर से, क्योंकि और विषयों की बात मैं नहीं करता हूँ, तो लिटरेचर में हमारे बारे मारा मारी होती है, तो वो बहुत से लोगों को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल जाते हैं, लेकिन पद्मा अवार्ड नहीं देते। ऐसा कुछ संयोग की बात है, मुझे मिल गया तो ईश्वर की इच्छा थी। तो अपना काम भी था, क्योंकि अंग्रेजी हिंदी मेरी 100 किताबें थी, 100 बुक, जो हाई स्कूल में जो पहली किताब से ये दिए थे, 4 किताब, तो आगे लिखता रहा। तो उसको मैंने समय का उपयोग कैसे किया, एक साथ 3 सब्जेक्ट पढ़ रहा है, टॉप कर रहा है अपनी क्लास, सुबह इधर से जा रहा है, एक मुझे केशवदास वाजपेयी मिला करते थे रास्ते में, पंडित जी वो देने रख करके, हम लोग बच्चे जाते थे ना गाँव से, इसी समय उठ जाते थे, सुबह 4 बजे हो जाता, मैं तो गंगा स्नान करता था जाकर के, बहुत प्रतिदिन योगा भी करता था उस समय, छोटा बच्चा, और वो विवेकानंद दयानंद बनना चाहता था, ये जो पारिवारिक झंझट नहीं पढ़ना चाहता था। पिताजी चले गए, पिताजी फ्रीडम फाइटर, लेकिन कभी उन्होंने कुछ नहीं लिया, तो एक निस्वार्थ भाव से काम किया। और वो तो मेरे से जो प्रश्न पूछा था, यही सवाल जो आपने कहा
किसी ने भाई ये बताओ डॉक्टर को कि देयर इज नो कंप्लेंट अगेंस्ट यू एज रिगार्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल आर हैप्पी। नोबडी से यहाँ तो कोई कहते हैं कि इनके यहाँ तो रामराज है, ये भी कहा करते थे। मैंने कहा रामराज तो चला जी, लेकिन हाँ ये सुक्ति है, प्रचलित है समाज में, इनके यहाँ तो रामराज बल्कि व्यंग कहते, व्यंग में कहते हो गया एक व्यंग है। तो लेकिन मेरा व्यंग मुझे जो था, ये मुझे लगता था कि ये कह रहे हैं कि आपके पास कोई कंप्लेंट नहीं है किसी भी डिपार्टमेंट, इतना बड़ा 2000 के करीब व्यक्ति थे मेरे अंदर, 400 क्लास 1 ऑफिसर, क्योंकि पत्रिकाएं थी ना बहुत सारी, योजना कुरुक्षेत्र वगैरह वगैरह ये, और महात्मा गांधी के 100 वॉल्यूम अंग्रेजी में, 100 हिंदी में, जो मेरे वक्त में मैंने उनमें से अधिकांश छपवाए। अम्बेडकर की बाद में तो मैंने एक जब वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया था, फिर मैंने लिखा तो विश्व यात्रा, समय नहीं था, अब डायरेक्टर डिवीजन में बन गया तो और क्या चाहिए। उसके बाद मैंने कहा मुझे छोड़ दीजिए, जैसे अभी मुझे बहुत सारी संस्थाएं पकड़े रखती हैं, मैं कहता हूँ भैया मुझे छोड़ दो। तो उनको मैंने कहा था गॉड हैज गिवन 24 आवर्स टू एवरीवन, इट इज अप टू यू हाउ यू स्पेंड योर टाइम, हाउ यू यूटिलाइज योर टाइम। उस समय को आप गप्पों में लगा दीजिए, उस समय को आप शाम को बैठ कर 5 स्टार कल्चर में भी बिता दीजिए। मेरा तो लाइन हो रही है, और मेरे जो ठीक है अशोक और नगर में गया, क्योंकि मैं तो शुद्ध शाकाहारी रहा, आज भी मैं पूरी तरह से शाकाहार व्यसनहीन ऐसा जीवन बिताया, मैंने पूरी लाइफ बिताया। तो मैंने कहा जी वो समय जो है, मैं सोचता है मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कविताएं चलती रहती थी, लेकिन जब मैं प्रशासक होता था तो वहाँ पर 1 मिनट भी कहीं मेरा कभी अब मेरे घर में होता या मेरे वो अलग होता था। मैं उस समय मैं आई वॉज नॉट अ पोएट, आई वॉज नॉट अ राइटर, जस्ट एडमिनिस्ट्रेटर टेलीविजन डिपार्टमेंट। तो वो समय का उपयोग है अनिता जी, अगर आपके जो आज की पीढ़ी ये सोच ले कि भाई अपने समय का हमको सदुपयोग करना है, और हमको जरा ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप पूरी तरह से थोड़ा वो बने, मेरी तरह से, मैं अपनी तरह से भी नहीं कहता, क्योंकि मेरे अंदर भी समय का जब उस वक्त भी मैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं, जबकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, सबसे पहले शरीर है धर्म की साधना के लिए भी, जिसका परोपदेश कुशल बहु तेरे, हमारे जैसे लेखक उसका फिर भूल जाते हैं। यंग एज में बचपन में तो याद रहा कि सुबह 4 बजे उठना, वो करना, वहाँ जाना, गंगा हमारे पास में थी, स्नान करना उसमें, और फिर क्या था। तो जैसे ये आपसे हमारी इतनी वार्ता चल रही है और हमारे व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हैं, और आपने कहा कि जो अपने आप से अपनी साधना है और कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, तो 2 पंक्ति में कभी पलक पर आंसू, कभी पलक पर आंसू, कभी लब पर शिकायत है, मगर ए जिंदगी फिर भी मुझे तुझसे मोहब्बत है। तो जिंदगी जो है ऐसे ही चलती रहती है, और हमारे साथ हमारे बहुत सारे बच्चे जो जिनके लिए हम आज ये परवाज़ हमने कार्यक्रम का आरंभ किया है, उनके लिए आप कोई एक संदेश दें। और जो सबसे बड़ी बात इसमें जो भी विशेष जो स्पेशल बच्चे हैं, डिफरेंटली एबल्ड, और उनके साथ उनका परिवार रहता है, और में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है वो एक माँ की, जो माँ है, मदर है, उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है उसके जीवन में। उसका जीवन कैसे शेप अप करे, कैसे उसके दुखों को और अपने आप को कैसे संभाले। तो उसके लिए आप हमारे बच्चों को और जो पेरेंट्स हैं उनके लिए कुछ संदेश दीजिए। मैं सबसे पहले तो एक संस्कृत का श्लोक नहीं है, मंत्र का ही भाग है, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद, जिसका अर्थ है माँ। सबसे पहले समाज में या पूरी मानवता में माँ को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, इसलिए उसका सम्मान करना प्रत्येक का परम धर्म भी है, कर्तव्य है।
फिर मातृमान, माता के बाद में पितृमान, पिता। पहले माँ है, फिर पिता है, और फिर आचार्य यानी टीचर, जो पढ़ाता है, जीवन देता है। ये तीनों सम्मान के योग्य हैं। तो इसलिए माँ को तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि पहली माँ, जी वही पिता है, वही टीचर होती है। तो वो तो आपने जो कहा है, इसलिए हम लोग अपने जो परिवारों में माता पिता का सम्मान करना सीखना भी और सिखाना भी। दूसरों को भी हमें देना चाहिए कि माँ माँ ही होती है। मैं तो माँ के ऊपर कविताएँ लिखता हूँ, और सुनेंगे तो मेरे उनका निधन जब हुआ तो मेरे पास ही थी, और वो यहीं से गई थी। तो मैं एक दर्जन कविताएँ लिखता हूँ, और मैं इस उम्र में भी हम लोग याद करते हैं। तो जो हमारे यहाँ श्राद्ध तर्पण होते हैं, वो श्राद्ध तर्पण अगर जीते जी हम उतनी सेवा माता पिता की करें, तो मरने के बाद हमें पता नहीं हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। नोबडी नोज। जी सोल हमारी हमारी आत्मा कहाँ जाती है, वहाँ सा जीवनानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति वो कर रहे हैं। ये जो हमारे जो श्लोक हैं, मंत्र हैं, या वो पता नहीं, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर जी भेज देगा वही जाएंगे। ये सब जो हमारे बहुत अच्छा, पोइट्स राइटर्स ने लिखा बहुत है। अच्छा संदेश रहे। और आपकी अनुभव जो आपने साझा किए अपने जीवन के, जो भी उतार चढ़ाव और जो अचीवमेंट्स हैं, जो आपसे पता लगे, सुन कर के बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ समय बिताना। और बहुत कुछ खजाना है आपके पास, लेकिन हमें समय को ध्यान में रखते हुए जी आगे जी। आगे का के सेशन हमारे कुछ आज आज पूरा दिन प्रवास पर है। अच्छा। खामोशियाँ कर देती हैं बयां तो अलग बात है, हम्म। खामोशियाँ कर देती हैं बयां तो अलग बात है, कुछ दर्द हैं जो लफ्ज़ों में उतारे नहीं जाते, वाह वाह वाह। कुछ दर्द हैं जो लफ्ज़ों में उतारे नहीं जाते। तो इन सब को हम समझते हुए, और जैसे कि मैं एक, परवाज़ और जी बताइए। जी मैं आपकी जो जी पंक्तियां हैं इन्हीं के साथ में जी अपनी पंक्तियां जोड़ता हूँ, जी जो याद आ रही हैं, और जो बच्चों को भी अच्छा लगेगा। जी हर तरफ से हर किस्म के सांप ने इतना डसा है, एक दंश देखिए हर व्यक्ति के भीतर बैठा हुआ है। हम लोग कितनी मित्रता कहाँ तक रहती है। हम मित्र नहीं रहे, सुमित्र नहीं बनना तो बहुत बड़ी बात है। हर तरफ से हर किस्म के सांप ने इतना डसा है, नाग काले का जहर भी अब असर करता नहीं है, अब असर बहुत करता खूब, बहुत खूब। है। ये मतलब जीवन। जब जी जी। हाँ बोलिए, अब आप जैसे कि बहुत सारे दुख और बहुत सारे खुशियाँ, इसका अगर बीच में अगर हम खड़े होकर देखते हैं तो कोई मतलब नहीं है। जब ज़िंदगी मिली है तो उसको बहुत ही खूबसूरती से जीना है। बस, जी, और अगर किसी के पास एक जो ईश्वर है जिसको हम मानते हैं सर्वशक्ति, उसी ने अगर हमें चैलेंज दिया है, हमारी ज़िंदगी में एक चैलेंज दे करके एक कि अब ये तुमको करना है, तो उसको बखूबी निभाना है। मैं हमेशा आप दिल से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी, जिसको भी ये ईश्वर ने भेजा है, जिस भी बच्चे को, उस बच्चे की देखभाल करने वाला भी उतना ही पूजनीय है हमारे लिए, उतना ही हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी के को मान लिया है, उसका एक्सेप्ट कर लिया है। तो मैं हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि उसको, उनको सबको इतनी शक्ति दे कि एक अच्छा मार्गदर्शन मिले और ज़िंदगी ऐसे अपनी अपने तरह से खूबसूरती से निभाते चले क्या जाएं। बात, बहुत और सुंदर। इसको चैलेंज चैलेंज मान करके, और जैसा भी जो मिला है उसको एक्सेप्ट करके आगे आप बढ़ते रहें, बहुत यही बहुत धन्यवाद हमारी। आपने। और आपने सर, आप हमारे साथ जुड़े, एशियन लिटरेरी सोसाइटी के फाउंडर श्री मनोज कृष्णन की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ।
हमारी एशियन लिटरेरी सोसाइटी की टीम और मैं आपको बहुत बहुत आभार आपका कि आप हमारे बहुत बहुत साथ धन्यवाद। जुड़े और आपने अपना कीमती समय दिया। आपके जो विचार, आपने 500 किताबें लिखी हैं और आपके बारे में जाने क्या क्या, इतना तो हम इतने कम टाइम में बता ही नहीं सकते। कुछ हेडलाइन की तरह ही हो सकता है, वो भी पूरा नहीं होगा। तो आप जैसा हम तो सोच भी नहीं सकते कि इतना काम कैसे कर सकते हैं, कैसे कैसे संभव हुआ, कैसे किया आपने। लेकिन ये एक सोसाइटी के लिए बहुत ही बड़ा एक पिलर बन करके आपने साहित्य को एक पिलर बनाया और बहुत सुंदर काम किया है, जो हम हमेशा पढ़ते रहेंगे, आपकी किताबें सीखते रहेंगे। आप लिखते रहिए। धन्यवाद। बस एक चीज और मैं कह के जाना चाहता हूँ। जी मेरी एक पुस्तक है जिसका नाम है, जो लिटरेरी नॉन लिटरेरी कहता हूँ मैं, लेकिन नॉन लिटरेरी कुछ नहीं होता, सभी साहित्य अपना कुछ न कुछ उसमें कुछ होती है। नाम है मेहनत की जिंदगी। उसका नाम पहले था सफलता सफलता। 50 से ऊपर उसके एडिशन हो चुके हैं। जो आज आर्ट ऑफ लिविंग है श्री श्री रवि जी का, जी उस समय नहीं था जब मैंने वो लिखा था। किताब घर जी ने छापा है इस किताब को दिल्ली में। उसमें उसकी कुछ लेख जी ब्रेल लिपि में भी छपे, पत्रिका निकलती थी। तो उसका अनुवाद जरूर होना चाहिए, अगर शेष नहीं हुआ है। और अगर यहाँ जी पे कोई टीचर बैठे हुए हैं उनके, जी या माता पिता भी हैं, तो वो उसका अनुवाद ब्रेल लिपि में कराएं और भाषाओं में कराएं, तो आपको लगेगा कि मेरा यहाँ आना सार्थक है। क्योंकि एक जी लेखक बिल्कुल, समाज के इसको लिए लिखता है। पढ़ेंगे। और वो बेशक आप कविताएं मत पढ़िए, बेशक आप मेरा जाया वो साहित्य मत पढ़िए, बेशक हमारे इंसाइक्लोपीडिया 200 वॉल्यूम में 8 लाख रुपए के बड़े बड़े ग्रंथ हैं, मत पढ़िए। बस एक मेहनत की जिंदगी, उस पुस्तक को आप देख जी जाइए। बिल्कुल, कोशिश तो बिल्कुल जीवन मेरा, पढ़ेंगे। उसमें एनेक्डोट्स हैं बड़े बड़े, अब्राहम लिंकन से लेकर के कहाँ से वैदिक दालक ऋषि कलाम, ये पूरे पश्चिम का गुलदस्ता है। इन शब्दों जी के साथ बिल्कुल पढ़ेंगे सर। और भरोसे पे जिंदगी टिकी है, वरना कौन कहता है कि फिर मिलेंगे। तो आपसे हमेशा मिलते रहेंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। थैंक यू जी, सो मच सर, आप तो थैंक यू सर, बहुत अच्छा थैंक लिखते यू, हैं। बहुत और अच्छा, आपकी थैंक कविता भी आगे बढ़ती रहे, लिटरेरी सोसाइटी यू जी। आगे आपका बढ़े, आशीर्वाद, मेरा आपका आशीर्वाद है। आशीर्वाद। मनोज हैं, जी दूसरे जी, बहुत थैंक सारे यू। आपके साथी हैं, उन सबको मेरा जी जी, हृदय से नमन, हृदय से प्यार और नमस्कार। नमस्कार और सर, आपकी ये थैंक यू। बात प्रातः जी सुन रहे हो, जहाँ भी जी अपने जी घर, जी अभी बिल्कुल। घर ही स्टूडियो बन गए हैं आजकल, घर जी ही जी जी यूनिवर्सिटी बहुत बन गई अच्छा, है, बहुत जहाँ पे अच्छा नमस्कार, वार्ता रही आपसे। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद।